How are you all? आज अटेंडेंस इतना कम क्यों है आपका? आई वाज वेटिंग कि भाई थोड़ा अटेंडेंस बढ़े, बहुत कम है आज आपका अटेंडेंस। सब रक्षाबंधन मना रहे हैं। So am I audible, visible to everybody? Yes, ma'am. Great. तो हमने पीरियोडिक टेबल स्टार्ट किया था ना लास्ट लेक्चर। Yes, ma'am. कहाँ तक पढ़वाया मैंने आपको? याद दिलाओ मुझे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा था Li और लिथियम और सोडियम का। तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स बताया ना। सो आई हैव स्टार्टेड, क्या कर रहे हैं ये समझाती हूँ। तो पीरियोडिक टेबल मैंने मॉडर्न फॉर्म आपको ड्रॉ करवाया लास्ट लेक्चर, है ना? वी सॉ how many periods are there, how many vertical groups are there. We saw every period जो होता है, it begins with alkali metal, ends with inert gas, है ना? Yes, ma'am. और मैंने आपको एलिमेंट्स बताए पीरियोडिक टेबल के, हाउ मेनी आर देयर इन एवरी पीरियड एंड एवरीथिंग। अभी जो मैं पार्ट कर रही हूँ आपके साथ, दिस इज क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। And this classification is based on nature of orbital in which last electron enters. या इसको कहते हैं based on differentiating electronic configuration. तो हम जो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं is based on differentiating electronic configuration. Yeah, this means the last electron जो होता है ना, उसको हम differentiating electron कहते हैं. And this classification is based on the nature of orbital in which the last electron enters. और इसके बेसिस पे लास्ट लेक्चर मैंने आपको फर्स्ट टाइप ऑफ एलिमेंट्स बताया. So I've already shown you first type of elements based on this is called S-block elements. तो कहाँ पे थे S-block elements? What was the position of S-block element that we saw? On extremely left hand side of the periodic table. 1A and 1B. Yes, पहले दो ग्रुप हमने देखे, 1A and 1B, and we wrote the electronic configuration and check. So either 1A and 1B or group 1 and group 2. Yes. Okay, these are the elements which are called as S block. तो families मैंने आपको इसमें discuss किए, alkali metal and alkaline earth metal. And in this there are 12 metals. This is the chemistry of 12 highly reactive metals. S block element में 12 metals है, highly reactive है, very much reactive metals. पूरे periodic table के सबसे ज्यादा reactive metals यही है. And what is their general electronic configuration? alkali metal का NS1 है और alkaline earth metal का NS2 है. So we can say NS122. Okay, is their electronic configuration. This is what we have already seen.
नाउ आई एम आस्किंग यू, आपके सबके पास पीरियोडिक टेबल है जो हमने लास्ट वीक ड्रॉ किया है. सो नाउ लुक एट ग्रुप 13. अभी आप ग्रुप 13 पे फोकस करो, और ग्रुप 13 के जो पहले दो एलिमेंट्स हैं, इसको ग्रुप 13 को मैंने नेम करवाया था आपको. नेम ऑफ ग्रुप 13 बोरॉन फैमिली. बोरॉन फैमिली. लिखवाया था कि नहीं लास्ट लेक्चर? लिखवाया था मैम. हाँ मैम. ये आपकी बोरॉन फैमिली है, और बोरॉन फैमिली में पहला एलिमेंट बोरॉन है. तो राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बोरॉन 5, aluminium 30. We will see something common is there here or not. So this is your boron family I am talking. और जो बोरॉन फैमिली है वो ग्रुप 13 है, या इट इज 3A. लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सबशेल में है. हाँ बेटा, तो तू पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका लिखेगा ना, तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p1. एल्यूमिनियम हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1. तो इसका बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? बैलेंस शेल मतलब लास्ट शेल. The last shell is 2s2 2p1 here, and aluminium के केस में हो जाएगा 3s2 3p1. And this family in general is going to show you ns2 np1. So as we go down in this family, okay, आपके बोरॉन एल्यूमिनियम के बाद गैलियम है, तो गैलियम होने वाला है 4s2 4p1, and इंडियम will be 5s2 5p1, and thallium will be 6s2 6p1, and so on. So this family's general electronic configuration is ns2 np1. Now we check the next family, carbon family. तो आपका कार्बन फैमिली ग्रुप 14 है, या दिस इज 4A. And first two elements, carbon 6 and silicon 14. So carbon family, when we check, the valence shell electronic configuration is 2s2 2p2 3s2 3p2. So this family in general will be ns2 np2. And the next family carbon के बाद में आता है नाइट्रोजन या निप्टोजन.
So nitrogen family, we see general electronic configuration 3s2, 3ns2, np3. नाइट्रोजन के बाद में आएगा ऑक्सीजन फैमिली, ऑल्सो कॉल्ड एज चैल्कोजन फैमिली. This is group 16 या group 6A. And it will have oxygen and sulfur. So here the configuration जनरल हो जाएगा NH2 NP4. लिखने आ रहा है ना सबको? Yes, sir. Yeah, ma'am. फिर इसके आगे हो जाएगी हमारी हैलोजन फैमिली. या ग्रुप 17 या ग्रुप 7A. And the last group is your inert gas family. The noble gas. जो आपका है ग्रुप 18 या ग्रुप 18. इसमें मैं नियॉन लिख रही हूँ. इसके जनरल कॉन्फ़िगरेशन का एक्सेप्शन होगा हीलियम, वो 1s2 है, बट उसके नीचे नियॉन या आर्गन will follow the pattern. The general configuration that you see is NH2 and P6. So I have shown you 6 families here, where the last electron is entering in p subshell. So the 6 families at extremely right hand side is your next class of elements, p block elements, present on extremely right hand side of the periodic table.
here we are having from group 3A to 8A or group 13 to group 18. Totally, we will be having here 6 families. And the general electronic configuration, if I have to write, it is NS2 NP126. This is the general electronic configuration of P block. Now, P block is very unique in entire periodic table. P block, you will see metals. P block, you will see non-metals. And P block, you will see metalloid also. Please take out your periodic table. I'll mark you the metalloids in P block. शायद ये नहीं मार्क करवाए थे लास्ट लेक्चर या करवाए थे? नो मैम। नहीं मैम। तो पीरियोडिक टेबल निकालिए, मैं आपको मेटलॉइड्स बताते जाऊंगी, तो आप उसका बॉक्स शेड कर रहे हैं, ठीक है? मैम हाँ बोलो बेटा। मैम बोरॉन फैमिली इज थर्ड बी राइट? आपने ए लिखा है शायद। नहीं बेटा, बोरॉन फैमिली इज थर्ड ए ओनली, और पिछले लेक्चर भी मैंने थर्ड ए ही लिखा था. यू प्लीज चेक. ओके ओके मैम. You might have by mistake written it as third B. Third B is your group 3 scandium वाला. मैम तो थर्ड पीरियड क्या होता है? मैंने थर्ड ए उसको लिखा है और बोरॉन फैमिली को मैंने थर्ड बी लिखा है. आपको तूने गड़बड़ किया है. आप तुम्हारे फर्स्ट डे और सेकेंड डे के बाद में सारे छोटे ग्रुप जो है वो बी है. ऑल स्मॉल ग्रुप्स आर बी. ओके मैम. And all tall groups are A. So boron family में, so I'm marking you non-metalloids now. So in the metalloids you can start shading boron. फिर ग्रुप 14 में दो मेटलॉइड्स है, सिलिकॉन एंड जर्मानियम. What, ma'am? Group 14, two metalloids are there, silicon and germanium. Group 15, arsenic and antimony. Group 16, tellurium and polonium. मैम ग्रुप 15 का बोल सकते हो आप? हाँ बेटा, ग्रुप 15 में आर्सेनिक और एंटीमनी. ग्रुप 16, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम. और ग्रुप 17 में एस्टर्टीन. तो आप देखोगे कि बोरॉन अगर ऐसे इधर है तो आपका नेक्स्ट सिलिकॉन इधर आएगा. सिलिकॉन के नीचे मैंने आपको जर्मानियम भी मार्क किया है. सो सिलिकॉन एंड जर्मानियम इन ग्रुप 14. फिर उसके बाद में हम ग्रुप 15 में चली जाते हैं. तो ग्रुप 15 में आर्सेनिक इज हियर एंड एंटीमनी इज हियर, राइट? एंड देन इट इज एंटीमनी के बाजू में यहाँ पे टेलेरियम है, बट उसके नीचे यहाँ पे पोलोनियम है और यहाँ पे एस्टर्टीन. So it goes like this. So these are the metalloids in P block. ये ऐसे P block के metalloids आते हैं, ठीक है? अभी ये जो आपके metalloids है, ओके, अभी P block को ध्यान से देखो.
इन मेटलॉइड्स के ये तरफ देखना, ये छोटी एलिमेंट्स है, ये मेटल्स, और मेटलॉइड्स के ये तरफ नॉन मेटल्स है. So you have periodic table to watch these elements. See this. मैम बोलो. मैम पर एस्टेटीन तो हाइड्रोजन फैमिली में आता है ना, तो वो मेटलॉइड कैसे है? तो मेटलॉइड कैसे का क्या मतलब है? मतलब किसी ने बोल के रखा है कि हाइड्रोजन फैमिली में मेटलॉइड नहीं है तेरे को? अच्छा अच्छा, ओके ओके. ये पी ब्लॉक के जो फैमिलीज है ना, एक फैमिली, अगर तू कार्बन की फैमिली देखता है ना, ध्यान दे, कार्बन के फैमिली में कार्बन नॉन मेटल है, फिर दो मेटलॉइड है, नीचे दो मेटल है, ये मिक्स्ड है. ये पी ब्लॉक की फैमिली मिक्स्ड है. इसमें एक फैमिली में तेरे को नॉन मेटल भी मिलेगा, मेटलॉइड भी मिलेगा. कहाँ कहाँ पे मेटल भी मिलता है, हैलोजन में मेटल नहीं. बट ये दूसरे फैमिलीज में यू विल गेट एवरीथिंग टुगेदर. हाँ मैम, समझ गया. ओके, तो पी ब्लॉक, सो मॉडल ऑफ द स्टोरी, पी ब्लॉक में तीनों हैं. पी ब्लॉक इज having all the three present: metals, non-metals and metalloids. So we are going to see this in detail in a chapter called P block. हमको P block नाम का chapter है. S block नाम का अलग से chapter है inorganic में, जिनमें ये S block के metals के बारे में हम और पढ़ेंगे. P block goes very elaborative, as you know we are having lot to do in P block, क्योंकि प्रॉपर्टी में वेरिएशन सबसे ज्यादा P ब्लॉक में है. ठीक है, नाम गोइंग अहेड. ये पोजीशन समझ में आए सबको? कोई कंफ्यूजन नहीं? सबने ग्रुप के नाम वगैरह बराबर लिखे हैं? Yes, ma'am. somebody had written by mistake A के जगह पे B, तो वैसा और कोई है तो देख लो बेटा, चेक करो, गलत ना लिखो. ऑनलाइन में आई कांट सी योर बुक्स, मुझे आपके बुक्स नहीं दिख रहे, आपको ही चेक करने पड़ेंगे कि जो बोर्ड में मैंने लिखा है आप ठीक से उसे कॉपी कर रहे हो कि नहीं. So see, we finished classifying all the tall groups. सारे A groups को हमने classify कर लिया. Now I want you to focus on small groups. अभी small groups पे ध्यान and check group 3, 4th period. Your first element is scandium. So can you write? मैम आप रुक सकते हो, मेरा नीचे का लिखना बाकी है, नोबल गैस फैमिली. हाँ बेटा, लिख लो. So I want you to focus on group 3, P. Group 3, P. They are also called as group 3. इसमें you will see scandium. With atomic number 21. Can you write electronic configuration of this? Yes, ma'am. किसका? अच्छा, ऐसे.
Yes. लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जा रहा है? यहाँ पे 3d1. राइट. तो व्हेन यू राइट फॉर स्कैंडियम, अब शॉर्टकट यूज करोगे अरविंद का, ये हो जाएगा 4s2 4d1 3d1, राइट. और फिर स्कैंडियम के आगे टिटानियम विल बी d2, पैनेडियम विल बी d3, क्रोमियम का अनयूजुअल कॉन्फ़िगरेशन d5 हो जाएगा. ऐसे करके व्हेन आई रीच टू जिंक 30, okay, my zinc 30 is 4s2 3d10, right? Yes. तो ये जो 10 वर्टिकल ग्रुप्स है, ग्रुप 3 या 3b से फ्रॉम हियर टू ग्रुप 8b, ओके, टू 1b and 2b, ये 10 वर्टिकल ग्रुप जो है, दिस इज वेयर योर डी ब्लॉक इज प्रेजेंट. ये आपका डी ब्लॉक है. तो डी ब्लॉक की पोजीशन क्या है पीरियोडिक टेबल में? बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक. डी ब्लॉक के लेफ्ट में एस ब्लॉक है, डी ब्लॉक के राइट में पी ब्लॉक है. And D block are 10 vertical groups, all B small groups we talk about. So group 3B to 8B, 1B, 2B. यहाँ हम लिख सकते हैं group 3 to 12. Okay, this is what is the D block element की पोजीशन. अभी इनके लिए मुझे कुछ आपको समझाना है, ध्यान दो. So the configuration is on the board. Scandium to zinc का. अगर ये न्यूक्लियस है तो your fourth shell is the last shell. और 4s2 जो है वो फोर्थ शेल में है, which is the last shell, right? This is where your 4s is there and this is where your 3d is there. ये आपकी लास्ट शेल है, इसको हम बैलेंस शेल कहते हैं. और ये जो शेल है one before, this is called as penultimate shell. तो हमने एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में क्या देखा? एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन था was entering in the last shell, but what you see now, your last electron is not entering in the last shell. वो लास्ट शेल में नहीं जा रहा है, but it is entering in a shell before. It is entering in a penultimate shell. तो जब ये एलिमेंट्स रिएक्ट करते हैं तो डी जो लास्ट शेल ऑर्बिटल है इसके इलेक्ट्रॉन भी टेक पार्ट करते हैं और 4s के इलेक्ट्रॉन भी टेक पार्ट करते हैं. तो इनके सारे केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए, इनके सारे केमिकल रिएक्टिविटीज के लिए 4s इलेक्ट्रॉन्स भी रिस्पॉन्सिबल है और 3d इलेक्ट्रॉन्स भी रिस्पॉन्सिबल है. तो इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते वक्त हम दोनों को इंक्लूड करते हैं, इन दोनों को लिखेंगे क्योंकि दोनों इनके प्रॉपर्टीज डिसाइड करते हैं. ये पहले समझ. दूसरा ये समझना है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन लास्ट ऑर्बिट में लास्ट शेल में नहीं जाता,
पेनल्टी मेड शेल में जाता है, एंड दैट इज व्हाट मेक्स द लास्ट शेल एंड पेनल्टी मेड शेल both incomplete. And as a reason, these are the elements which are having further difference in the property as compared to metals that we saw in S block and metals that we saw in P block. Property में क्यों फर्क है? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में फर्क है, अलग है. So properties of these metals will be different than your S block metals because they differ in electronic configuration. The last electron enters in penalty made shell. Is that clear? Yes, ma'am. Okay. अभी इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखना कैसे है ये मैं आपको समझा. n के टर्म, तो मैंने आपको बताया था n हमेशा क्या रहेगा, पीरियड. तो अभी ये स्कैंडियम टू जिंक कौन से पीरियड में है, देख के बताओ. Fourth period. फोर्थ Fourth पीरियड period. में. तो इसके लिए n में 4 के जगह पे यूज करूंगी. तो इसका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो ns2 है, और जो D है वो ND नहीं है. मतलब जब भी 4s होता है तो 4D नहीं होता, n minus 4s होता है तो 3D है. मतलब जो D है वो n-1D है, and this will be 1 to 10. और एक्सेप्शन है इसके लिए, ये ns में कभी कभी 1 होता है, जैसे आपने क्रोमियम और कॉपर का केस देखा जहाँ पे एक्सेप्शन के वजह से ns 1 या 2 होता है और nd 1 to 10 होता है. तो ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So this is the general electronic configuration for D block, where this is the last shell and this is a shell before, not the last but one before, जिसको कहते हैं Penalty. penalty made shell, right? तो अभी देखो कॉन्फ़िगरेशन सबको क्लैरिटी से समझा, किसी को कोई कंफ्यूजन है हाउ टू राइट? मैम वो NS 1 to 2 है क्या? हाँ बेटा NS 1 to 2 है क्योंकि आपको क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन पता है. हाँ उसका NS 1 आता है एक्सेप्शन है ना, तो उसमें हम 4s1 लिखते हैं और 3d5 लिखते हैं. हाँ और कॉपर में भी 4s1 लिखते हैं. तो सबको ये समझ में आया कॉन्फ़िगरेशन वाला पार्ट? देन आई टीच यू अहेड. हम ये वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना? हाँ बेटा वैलेंस शेल इज फोर्थ, अगेन वैलेंस शेल फोर्थ है, बट हमको 3d तो लिखना ही पड़ेगा कि नहीं? हाँ. ये लास्ट इलेक्ट्रॉन तो वैलेंस में नहीं जा रहा है, पेनल्टी मेट में जा रहा है. हाँ. तो वैलेंस तो हम हमेशा लिखते हैं. हम पेनल्टी मेट क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हम लास्ट इलेक्ट्रॉन. यस, हम पेनल्टी मेट इसके लिए लिख रहे हैं क्योंकि दैट इज वेयर द लास्ट इलेक्ट्रॉन इज एंटरिंग. Yes, ma'am. तो इसके प्रॉपर्टीज में D obviously will play a role, but last valence shell electrons also will play a role. तो हम लास्ट भी लिख रहे हैं और पेनल्टी मेट भी लिख रहे हैं, दोनों लिख रहे हैं. Yes, ma'am. yes
ओके अभी ध्यान दो, इतना समझ में आया तो अभी ध्यान दो। तो अभी इसमें आप फोर्थ पीरियड में जो हमने अभी एलिमेंट्स देखे, ये जो एलिमेंट्स है डी ब्लॉक का हम फर्दर क्लासिफिकेशन करेंगे। डी ब्लॉक इज फर्दर क्लासिफाइड एज फर्स्ट transition series. The series is also called as 3D series. So D block में first series is first transition या 3D series, which starts with scandium 21 and zinc 30. And it has a general electronic configuration 4s122 3d1 to 10. मैं आप ये ट्रांजिशन सीरीज में क्या बोला फिर से बोल सकते हैं? हाँ बेटा, ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है, तो मैं डी ब्लॉक का आगे क्लासिफिकेशन बता रही हूँ। डी ब्लॉक इज फर्दर क्लासिफाइड। यस मैम। मैम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में खाली 10 ही एलिमेंट्स है इंक्लूड होते हाँ हैं। बेटा, 10 एलिमेंट्स ही है। आपके पास है ना पीरियोडिक टेबल? हाँ तो अभी देखो, नेक्स्ट उसके नीचे देखो, स्कैंडियम के नीचे व्हाट डू यू सी? इट्रियम, and that is what is your second transition series. ये सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज को 4D सीरीज भी कहते हैं। So here if we write electronic configuration, the last electron is entering in D subshell, and that is 4D. So your second transition starts with yttrium 39 and it will go up to cadmium 48. Yttrium 39 to cadmium 48. मैम आपने फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में 4s क्या लिखा है? 4s1,2 बेटा। ओके मैम। 1 भी होता है ना क्रोमियम कॉपर के केस में। तो सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज में भी आप देखो देयर आर 10 एलिमेंट्स। There are 10 elements here और इसका कॉन्फ़िगरेशन, इसका लास्ट शेल 5 है। यहाँ पे भी एक्सेप्शन है, so 5s1 or 2 and we will gradually put electron in 4D. So it will be 4D 1 to 10. मैम इसमें किस किस में ये होता है, एक्सेप्शन होता है? ये करेंगे बेटा, डी ब्लॉक अलग से चैप्टर है, उसमें डिस्कस करेंगे। एट दिस स्टेज समझने की जरूरत नहीं है। There are 6 elements here who are having exception.
but not required at this stage. At this stage इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन भी समझ में आ रहा है तो बहुत हो गया. तो इसमें भी लास्ट शेल आपका 5s है और penalty weight is 4, and in 4D we are gradually putting electron. Then below that you see that is what is your third transition series. तो ये हर एक ट्रांजिशन सीरीज 10 एलिमेंट्स की है. So your total D block is a chemistry of 40 elements. D block 40 elements की chemistry है. All 40 metals divided into 4 series of 10 each. टेन एलिमेंट्स ईच के 4 सीरीजेस है. So here below yttrium you will see lanthanum 57. To last element mercury 80. और इसमें जो lanthanum के पोजीशन को देखो. अभी lanthanum आपने लिखा होगा उसको देखो. मैंने lanthanum 57 के साथ और 14 एलिमेंट्स लिखे हैं, उनको नहीं काउंट करना है डी ब्लॉक में. सीरियम 58 से लेके लुटेशियम 71 तक, these are not to be counted. तो आप लैंथनम लेना और उसके आगे हैफ्नियम 72 है और ऐसे गिनोगे तो ये 10 ही हो जाएंगे. एक बार गिनती करके देख लो. हाँ मैम 10 है. 10 है ना. ये 14 को नहीं गिनना है. लैंथनम और उसके बाजू के जैसे ऊपर गिने वैसे ही ये 10 है और ये हमारी 5D सीरीज है. तो इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है 5 6s 1 to 2 5D 1 to 10. And below that is your 4th transition series or 6D series. फोर्थ ट्रांजिशन या 6D सीरीज. इसमें पहला मेंबर लैंथनम के नीचे देखेंगे तो एक्टिनम 89 है and the last is copernicium 112. Again same story here. लैंथनम के नीचे अगर आप 7 पीरियड में देखोगे तो एक्टिनम है 89 और उसके साथ में मैंने 14 एलिमेंट्स लिखे हैं. थोरियम 90 से लॉरेंशियम 103 तक. तो डी ब्लॉक में इनको नहीं गिनना है. तो एक्टिनम को पकड़ के अगर आगे चले जाओगे तो हो जाएंगे 10 एलिमेंट्स. Yes, ma'am.
मैम वो थोरियम 92 LR उसके ऊपर क्या था उसका एटॉमिक नंबर? थोरियम 90 है बेटा और Lr लॉरेंशियम 103 है। 103। थैंक यू। So actinium 89 to copernicium 112 will have a configuration general 7s122 and here 61-10। तो ये आपके डी ब्लॉक के 4 सीरीज है, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D series and 6D series, and this is the chemistry of 40 metals. हो गया यहाँ तक सबका? तो हमने अब तक एस ब्लॉक देखा, डी ब्लॉक देखा और पी ब्लॉक देखा। We have classified elements into 3 types. Now I want to show you, सबका लिख के हो गया बेटा बोर्ड से? अभी मैं आपको यस मैम। 4th टाइप Yes, के ma'am. एलिमेंट्स बताऊंगी। इसके लिए I want you all to recollect your Ampou's principle। और आपका जो अपाउ प्रिंसिपल है वो याद करो सब लोग। और मैं 2 एलिमेंट्स दे रही हूँ, इनके हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरा लिखने की कोशिश करो। एक है लैंथेनम 57 जिसको अभी मैंने डी ब्लॉक में दिखाया है आपको, और दूसरा उसका नेक्स्ट एलिमेंट सीरियम 58। Let us try writing electronic configuration for these two. तो अगर लैंथेनम 57 का शॉर्टकट में लिखना है तो कौन सा इनर्ट गैस लिखेंगे हम लोग, बोलो? अगर शॉर्टकट में xenon लिखेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। 5T16S2। अभी xenon लिखने के बाद तो xenon का क्या कॉन्फ़िगरेशन होगा? xenon आपका इनर्ट गैस है और कौन से शेल में है? है ना, xenon आपका इनर्ट गैस है। Yes. और वो Yes. 5th शेल में है।
तो उसका कॉन्फ़िगरेशन होगा 5s2 5p6, लास्ट इज 5p6। तो आप अभी अबाव प्रिंसिपल में देखो, आपके अबाव प्रिंसिपल में 5p के बाद में कौन सी शेल है? 6s. 6s है। Yes, ma'am. ओके, तो शेल्स लिखने हैं 5p के बाद में, तो 6s आता है। मुझे बताओ अबाव प्रिंसिपल में 6s के बाद में कौन सी शेल आती है? 4f. राइट, सबने देखा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. 4f. हाँ मैम 4f। राइट, तो अबाव प्रिंसिपल में एनर्जी वाइज 6s के बाद में 4f आता है, और 4f के बाद में क्या आता है? 5d. 5d. 5d। ये सबने क्लैरिटी से देखा है, एनर्जी सीक्वेंस में किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। अभी देखो जेनॉन इज 54, तो जेनॉन 54 के आगे मुझे बस 3 इलेक्ट्रॉन को पोजीशन करना है, जिसमें से 2 तो 6s2 में चले जाएंगे। अभी जो एक इलेक्ट्रॉन है कहाँ पे जाना चाहिए? 4f में जाना चाहिए, है ना? बट लैंथनम इज 4f0, है नहीं उधर इलेक्ट्रॉन। तो एक्सेप्शनल केस है लैंथनम का। एक्सपेक्टेड क्या है कि वो 4f1 हो, और अगर वो 4f1 होता तो मैं उसको f ब्लॉक का मेंबर बोलती। आपको मैंने आपको उसको d ब्लॉक का मेंबर बोला है। Yes, ma'am. क्योंकि उसमें 4f में इलेक्ट्रॉन नहीं है, उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन 5d1 में है, and that is what makes lanthanum 57 very much a member of p block। ये 5d सीरीज में फर्स्ट मेंबर है, d ब्लॉक का मेंबर है। ये वाले जो एलिमेंट्स है ना, जितना एटॉमिक नंबर हायर हो जाता है उतना उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में वेरिएशन ज्यादा हो जाता है। There is lot of variation in electronic configuration। क्यों मैम? क्योंकि ये जो ऑर्बिटल्स है ना, अभी लिखते वक्त मैंने लिखा है 4f। आपको अबाव प्रिंसिपल क्या कहता है? 4f इज एट अ लोअर एनर्जी लेवल, उसके ऊपर 5d है, इनमें एनर्जी गैप कम है। अगर आप नीचे देखोगे तो 1s and 2s बिग एनर्जी गैप, बट एज यू गो अप द एनर्जी गैप इज वेरी लेस, and that is what will make lot of exceptional configurations here। तो ये 4f0 5d1 है लैंथनम। अभी सीरियम देखते हैं, तो सीरियम में xenon है, 6s2 है, 6s2 के बाद में 4f है, और ये 4f2 है, इसमें 5d में इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इसके लिए मैंने सीरियम टू लुटेशियम, मैंने आपको बोला था इसको डी ब्लॉक में नहीं डालो, हाँ मैम। क्योंकि इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में नहीं जा रहा है। The whole classification of block is based on nature of orbital in which last electron enters। यही है ना? तो अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में नहीं जा रहा है, इसके लिए इनको मैंने आपको डी ब्लॉक से एक्सक्लूड करने को कहा था। Yes, ma'am. तो सीरियम से लेके लुटेशियम तक we will gradually go on putting electron in 4f। आपका लुटेशियम जो है वो 4f14 हो जाता है। तो ये जो प्लेस है
ये आपका एफ ब्लॉक है। तो ये कौन सा प्लेस है? ये ग्रुप जो है वो थर्ड बी या ग्रुप 3 है, एंड दिस इज 6th पीरियड। चेक इट प्रॉपर। So third B group and 6th period Yes, ma'am. is the position of F block. तो अभी मैं चौथा क्लासिफिकेशन लिख रही हूँ एलिमेंट्स का, F block एलिमेंट्स। जिसमें हमको एक सीरीज जो मिल गई वो है सीरियम टू लुटेशियम। इनको हम कहते हैं लैंथेनाइट। सो दिस सीरीज इज योर लैंथेनाइट सीरीज। अभी उसके नीचे ये जो थोरियम से लेके लॉरेंशियम है, here also the electron will enter in F, and this is your actinide series. यहाँ पे it is 4F that will get filled gradually, और यहाँ पे it is 5F that will get filled gradually. आप एक बार वापस बोल सकते हो? हाँ बेटा, दो सीरीजेस है। तो F ब्लॉक एलिमेंट की पीरियोडिक पोजीशन क्या है? व्हाट इज द पीरियोडिक पोजीशन ऑफ F ब्लॉक एलिमेंट? ग्रुप 3p और ग्रुप 3 6th period and 7th period. This is the periodic position. And I'm having two series, lanthanide series and actinide series. अभी lanthanide series सीरियम का जो कॉन्फ़िगरेशन है इस पे ध्यान दो। इसमें देखो, अगर ये सीरियम का न्यूक्लियस है तो सीरियम में लास्ट शेल 6th है। Yes, miss. और ये 6th शेल में ये 6s है। Yes, ma'am. Yes, miss. ओके, बट लास्ट इलेक्ट्रॉन तो 6s में नहीं जा रहा है, कहाँ पे जा रहा है? 4f में जा रहा है, और 5d इधर है। ID. तो अभी यहाँ पे देखो, दिस इज योर लास्ट शेल। दिस इज योर पेनल्टीमेट शेल। लास्ट ये इलेक्ट्रॉन जो तो है, एफ में जाएगा। एक मिनट बेटा ध्यान दे, ये जो है वो पेनल्टीमेट से एक पहले है, इसको कहते हैं प्री पेनल्टीमेट या एंटी पेनल्टीमेट शेल। So this means not the last but two before. तो F ब्लॉक में क्या फर्क है? F ब्लॉक में जो तुम्हारा लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो लास्ट शेल में नहीं, 1 बिफोर में नहीं, 2 बिफोर में आ रहा है। So can you see a difference in electronic configuration between D block and F block? Yes, ma'am. Yes, miss. D ब्लॉक और F ब्लॉक में फर्क समझ में आया? D ब्लॉक में वो पेनल्टीमेट शेल में था और F ब्लॉक में वो प्री पेनल्टीमेट शेल में है। अभी ध्यान से देखो, अगर मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो मेरा N होता है पीरियड, तो सीरियम के लिए N हो जाएगा 6, D हो जाएगा N-1, और ये F जो है ये है N-2। ये पार्ट समझ में आया? Yes, ma'am. तो
see, I write the general electronic configuration. ध्यान दो, तो ये है NS2. अभी D जो देखो मैंने यहाँ पे सीरियम में D0 लिखा है, इसमें भी एक्सेप्शंस आते हैं जिसमें कभी कभी एक इलेक्ट्रॉन 5D में चला जाता है 4f के जगह पे, जैसे लैंथेनम में हुआ 4f1 होना चाहिए बट वो 5D1 हो गया. वैसे ही लैंथेनाइड सीरीज में there are exceptions where the electron is entering instead of 4f in 5D. तो NS2 पक्के से होता है, जो N-1 और D है वो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम 0 होता है और एक्सेप्शन के टाइम पे वो 1 होता है. और आपका जो F है प्री पेनल्टी में 6, this is where the last electron enters. ये है 1 to 14. समझ में आया? यस मैम. मैम जिस भी एक्सेप्शन में डी में 1 होगा तो वो एफ ब्लॉक में नहीं रहेगा ना, फिर डी ब्लॉक में चला जाएगा. नहीं बेटा, लास्ट इलेक्ट्रॉन तो एफ में ही एंटर हो रहा है और उसको डी में नहीं डालते क्योंकि प्रॉपर्टी जो है वो एफ के जैसे है. अभी एक्सेप्शन के लिए जब क्रोमियम 4s1 हो रहा है तो थोड़ी ना हम उसको s में डाल दिया. अच्छा हाँ. क्रोमियम भी 4s1 है तो थोड़ी वो s ब्लॉक हो गया उससे. हाँ. पोजीशन ऑफ द एलिमेंट भी इम्पोर्टेंट है, प्रॉपर्टीज भी इम्पोर्टेंट है. यस मैम. थैंक यू. तो इतना लिखो, फिर और एक्सप्लेन करती हूँ एफ ब्लॉक के बारे में. तो अभी एफ ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन सबको समझ में आया? यस मिस. ओके. अभी देखो एफ ब्लॉक, जैसे डी ब्लॉक में मैंने 4 सीरीज क्लासिफाई किए हैं, वैसे एफ ब्लॉक के 2 सीरीज है. मैंने ऑलरेडी मार्क भी कर दी है बट मैं फिर से लिखती हूँ. तो एफ ब्लॉक यू कैन कंटिन्यू राइटिंग 2 सीरीज. One is lanthanide series या 4f series. One is lanthanide series या 4f series. इसकी पोजीशन ऑलरेडी मैंने लिख दी. थर्ड बी ग्रुप, 6 पीरियड. और कॉन्फ़िगरेशन है इसका जनरल में आई विल राइट 6s2 5d sometimes 0 sometimes 1 4f 1 to 14. Is that clear to you? मैम ये 6 5d और 4f फिक्स्ड है, मतलब n फिक्स्ड है उनका 6 5 4. हाँ बेटा, क्योंकि वो 6 पीरियड में फिक्स्ड है ना. अच्छा. तो 6 पीरियड में होंगे तो n6 होगा, फिर n-1 5 हो गया, n-2 4 हो गया.
और फिर दूसरी सीरीज जो उसके नीचे है, एक्टिनाइड सीरीज। जो कि 5F सीरीज है। Which is position third B group या group 3, 7th period, and it will have a configuration 7s2, 6D0 or 1, 5F 1 to 14. समझ में आ रहा है सबको? यस मैम। हाँ, अभी आपने क्या बोला उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? हाँ बेटा, जो लिखा है वही बोला। हाँ। 7s2, 6D0 और 1, 4, 5F 1 to 14. यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? Can you understand till here, everybody? यस मैम। Yes, miss. यस मैम। तो ग्रेट। तो हमने क्या कर लिया, देखो हमने पूरे पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स को 4 कैटेगरी में क्लासिफाई कर लिया। एस ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। इसमें मैंने उनकी पोजीशन आपको बता दी है, वो याद रखनी है। जो डी और एफ ब्लॉक के सीरीजेस बताने हैं वो याद रखने, ऑब्वियसली उस पे क्वेश्चन बनते हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंट इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जिसमें आपको क्लैरिटी से पता है कि एस और पी में लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन लास्ट शेल, राइट। डी में इट इज एंटरिंग इन विच शेल? पेनल्टीमेट शेल। एंड एफ में मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। इंटरनेट प्रॉब्लम।
अन्ना ऑफलाइन चला गया। ऐसे ही गेम खेलता है वो, अभी अपना माइक ऑफ करके गेम खेल रहा है।